A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter The Cell for class 8, subject Science. Today's topic is Golgi complex. Golgi complex is one of the most important organelles of the cell. We have already discussed about the two cell organelles. One is the mitochondria, which is known as the powerhouse of the cell. Then we have endoplasmic reticulum that acts as a channel for the transport of materials from the nuclear membrane up to the cell membrane, that is known as plasma membrane. Yes, endoplasmic reticulum is also responsible for synthesis of proteins and lipids as well. Now we have the third important cell organelle, that is known as Golgi complex. It has different names. It's also known as Golgi body, Golgi complex. It's also known as Golgi body. Well, it is also known as Golgi apparatus, Golgi apparatus. Okay, Golgi complex. It's also known as Golgi body. It's also named as Golgi apparatus. And in plant cells, this Golgi complex, it is divided into small parts. And there in plant cells, it is known as dictyosomes. So whether we name it Golgi complex or Golgi body or Golgi apparatus, or we can call it as dictyosomes, but in plant cells. Okay, this is the structure of Golgi complex. I will explain the structure of this Golgi complex. First, we will see who discovered this cell organelle. हमें तो सेल दिखाई नहीं देती है, हमें तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो दिखाई नहीं देता है, तो ये सेल ऑर्गेनल्स हमें किस चीज़ से दिखाई देंगे? Well, we have a device that is known as microscope. With the help of microscope, we can observe this cell organelle that is known as Golgi complex, but we need an electronic microscope or a compound microscope. तो ये जो Golgi complex है, this is the structure of this Golgi complex. First we will see who discovered, किसने दरियाफ्त किया है इसको, किसने इसको पहली बार सेल के अंदर ढूंढा? तो वो शख्स है, उसका नाम है CAMILLO, कैमिलो गोल्गी. तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी और गोल्गी apparatus. The name of the scientist was Camillo Golgi. ये एक इटली का एक साइंटिस्ट था. He was an Italian scientist. इटली एक मुल्क है, तो वहीं का ये साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्गी. इसने 1897 में इसको डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया. किसको? गोल्गी कॉम्प्लेक्स को. किसने दरियाफ्त किया? एक इटली का साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी. किस साल? 1897 में इसने इसको दरियाफ्त किया, लगभग आज से करीबन 124 साल पहले. So
काफ़ी मशहूर साइंटिस्ट रहे हैं कैमिलो गोल्गी. ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबल प्राइज़. ये जो कैमिलो गोल्गी है इसको नोबल प्राइज़ से भी नवाजा गया. नोबल प्राइज़ इन 1906 1906 में इनको नोबल प्राइज़ भी दिया गया फॉर मेडिसिन. एक दवाई एक इन्होंने तैयार की तो मेडिसिन के फील्ड में इनको नोबल प्राइज़ दिया गया 1906 ईस्वी में. 1906 एडी में इनको मेडिसिन के लिए नोबल प्राइज़ दिया गया, जो कि नोबल प्राइज़ जो है ये बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा एजाज़ है एक किसी भी इंसान के लिए. तो अब हम आगे बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की. इसका जो स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो इसके दो फेसेस है. एक तरफ तो ये फेस है और दूसरी तरफ तो ये इसका फेस है. सो इट हैज़ टू फेसेस. वन इज़ this curved outwards and here it is curved inwards. तो जहाँ से curved inwards है तो इसको हम कहेंगे concave face और इसको हम कहेंगे convex face, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा इसका पेट जैसे बाहर निकला हुआ है. It is curved outwards, so this is the convex face and this face is curved inward, so this will be the concave face. This is the concave face and this is the convex face. और जो ये convex face है means curved outwards, इसका नाम दिया गया है cis face. ठीक, cis face. और जो ये concave face है इसका नाम दिया गया है trans face. तो इसके दो फेसेस है. जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसके दो फेसेस है, एक तो सिस फेस है, दूसरा ट्रांस फेस. तो हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के दो फेसेस है, एक है सिस फेस और दूसरा है ट्रांस फेस. तो जो इसका कन्वेक्स एंड है वो इसका सिस फेस है और जो इसका कनकेव एंड है यानी द फेस दैट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, दैट्स नोन एज ट्रांस फेस. इसके अलावा जो ये आपको ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो इसमें करीबन ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो है ये 3 से लेके 12 तक होते हैं. तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 बनाए हैं. तो ये 3 से लेके 12 तक हो सकते हैं. तो इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को, इन फ्लैटनड डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सिस्टर्ने. इनको कहते हैं सिस्टर्ने. तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स है, इनको हम कहते हैं सिस्टर्ने. तो 3 से लेके 12 तक ये होते हैं सिस्टर्ने एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में. तो इसके बाद हम देखेंगे जो ये सिस्टर्ने है, इसके अंदर जो स्पेस है, सिस्टर्ने के अंदर जो स्पेस है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं, सिस्टर्ने के अंदर जो स्पेस है उसको कहते हैं लुमेन. क्या कहते हैं इसको? लुमेन. LUMEN. तो सिस्टर्ने के अंदर जो स्पेस है दैट इज नोन एज lumen. So we have two faces of this Golgi complex. One is cis face, that is the convex end. Then we have the concave face, which is known as trans face. Then we have these tube-like structures
or flattened disc-shaped structures. These structures are known as cisternae. Then we have the inner side of the cisternae, inner space of this cisternae. It's known as lumen. It is known as lumen. So another thing we have these spherical shaped structures or balloon shaped structures. These are present inside the Golgi complex as well. These are present outside the Golgi complex as well. These spherical balls, or we can say balloon like structures, are known as vesicles. इनको vesicles कहते हैं. vesicles. तो बहुत सारे पार्ट्स है इसके. एक तो 2 फेसेस है इसके, एक तो सिस फेस और ट्रांस फेस है. इसके अलावा इसके जो ट्यूब्स है जिनको हम सिस्टर्ने कहते हैं, और सिस्टर्ने के अंदर जो स्पेस है उसको हम लिमन कहते हैं. इसके अलावा इसके पास है ये छोटे छोटे बॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है या हम बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स है जिनको हम वेसिकल्स कहते हैं. तो अगर हम कुल मिला के देखेंगे इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, तो इसके 3 मेन पार्ट्स हैं. ठीक, तो वो हम देखेंगे. जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसके 3 मेन पार्ट देखेंगे. गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है इसके 3 पार्ट्स हैं. 3 मेन पार्ट्स. ठीक, तो पहला जो मेन पार्ट इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स का है वो है सिस्टर्ने. ये सिस्टर्ने क्या है मैंने आपको बताया. ये फ्लैटनेड डिस्कस है. फ्लैटनेड डिस्कस है, या हम कहेंगे और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक, ये तो हो गया एक हिस्सा इसका. ठीक, उसके बाद है दूसरा हिस्सा इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जिनको हम वेसिकल्स कहते हैं. वेसिकल्स कहते हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पे. वेसिकल्स, इनका काम है, देखेंगे हम फंक्शन में इनका क्या काम है. तो ये दूसरा हिस्सा है इसका. और तीसरा हिस्सा जो है वो है वैक्यूल्स. तीसरा हिस्सा जो है वो है वैक्यूल्स. तो वो वैक्यूल्स कहाँ पे हैं? वो असल में वेसिकल्स ही है. मगर छोटे छोटे जो ये वेसिकल्स है, द स्मॉलर वैक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर वेसिकल्स, एंड दीज बिगर वेसिकल्स आर नोन एज वैक्यूल. इनको हम वैक्यूल्स कहते हैं. So bigger vesicles are known as vacuoles. So we have 3 main parts of this Golgi complex. One is the tube-like structures that are known as cisternae. Then we have the small spherical round-shaped structures called vesicles. And then we have the third main part of this Golgi complex that are known as vacuoles. These are nothing but the bigger vesicles. Okay, now we will talk about their functions. What is their functions? तो ये जो हमारे पास है पहला सिस्टर्ने. इस सिस्टर्ने का काम है, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा सिस्टर्ने का फंक्शन क्या है. तो सिस्टर्ने का फंक्शन जो है इसका जो काम है पैकेजिंग, or we can say receiving and packaging of raw proteins and lipids. यानी खाम माल, जिस तरीके से एक फैक्ट्री में खाम माल पहुंचाया जाता है तो वहाँ पे फिर उसको तैयार करके प्रोसेसिंग करके
और पैकेजिंग करके फिर मार्केट में उसको बेच दिया जाता है। तो बिल्कुल ये वही काम करता है कौन, सिस्टर्ने और वी कैन से गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसका काम है रिसीविंग एंड पैकेजिंग ऑफ रॉ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो खाम प्रोटीन्स है, खाम लिपिड्स है, उनको रिसीव करना, फिर पैकेजिंग करना और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करना, ये है सिस्टर्ने का काम, या हम कहेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम। तो आप बिल्कुल अब देख सकते हैं रिसीविंग और पैकेजिंग, फिर ट्रांसपोर्टिंग भी इसका काम है। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द पोस्ट ऑफिस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज़ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल। इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम बिल्कुल एक पोस्ट ऑफिस की तरह है, रिसीव करना, फिर पैकेजिंग करना और फिर सॉर्टिंग करना और फिर ट्रांसपोर्ट करना। तो ये इसका काम है, रिसीविंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, और भी हम कह सकते हैं सॉर्टिंग, सॉर्टिंग भी करना, इसी तरीके से प्रोसेसिंग करना। तो ये इसी का काम है, बहुत सारे काम है इसके। रिसीविंग भी करना रॉ प्रोटीन्स और लिपिड्स को, उनकी पैकेजिंग करना, उनकी सॉर्टिंग करना, उनकी प्रोसेसिंग करना और फिर ट्रांसपोर्ट भी करना, ट्रांसपोर्ट भी करना। ठीक, ट्रांसपोर्टिंग हम कह सकते हैं। तो ये सब काम तो असल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, और जो सिस्टर्ने है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, उनका काम है रिसीविंग एंड पैकेजिंग ऑफ रॉ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यानी रिसीव करना, लेना, पकड़ना और पैकेजिंग करना रॉ प्रोटीन्स और लिपिड्स की। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, और द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज़ द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक, इसके बाद अगर हम देखेंगे वेसिकल्स, तो वेसिकल्स का काम जो है, वेसिकल्स का काम है ये स्टोर करते हैं प्रोटीन्स, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, स्टोरेज भी और ट्रांसपोर्टेशन भी, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो वेसिकल्स का काम है स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, किन चीज़ों को, प्रोटीन्स और लिपिड्स को। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास वैक्यूल्स है। तो मैंने आपको कहा कि स्मॉलर वैक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर, स्मॉलर vesicles, sorry, smaller vesicles join together to form vacuoles, वे ये भी वैक्यूल्स बनाते हैं, और इनका काम भी है प्रोटीन्स को स्टोर करना और लिपिड्स को स्टोर करना। इनका काम जो है, इट इज़ फंक्शन is to store and transport proteins and fats, proteins and fats जिनको हम lipids भी कहते हैं। तो ठीक, तो ये तो इनके फंक्शंस भी रहे और इनके पार्ट्स भी हमने देखे। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के 3 मेन पार्ट्स है, सिस्टर्ने जो कि फ्लैट नेट डिस्कस होते हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन ट्यूब्स का काम है रिसीविंग एंड पैकेजिंग ऑफ रॉ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सो दिस इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द cell, or the Golgi complex is the post office of the cell. Then we have the second part of this Golgi complex that are known as vesicles. इनका काम है स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन करना इन प्रोटीन्स और लिपिड्स की। उसके बाद वैक्यूल्स है जो असल में स्मॉलर वेसिकल्स होते हैं, वो जॉइन टुगेदर होते हैं, वो आपस में मिल के वैक्यूल्स बनाते हैं, और वैक्यूल्स का काम भी यही है, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना प्रोटीन्स और लिपिड्स को। ठीक,
तो ये तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही थी। बिल्कुल। इसको हम फैक्ट्री का नाम भी दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस तो हमने ऑलरेडी इसको कहा, तो हम इसको फैक्ट्री का भी नाम दे सकते हैं। तो ये रही बात गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।